राइट, ठीक है। ओके, सो फर्स्टली कुडोज टू ऑल ऑफ यू कि आपने संडे को टाइम निकाला इस सेशन के लिए। हमारे साथ हमारे जो स्पीकर हैं, दत्ता रोकड़े, ही इज ऑल्सो हियर। रिक्वेस्ट दत्ता भाई, इफ यू कैन कम ऑन द कैमरा प्लीज। Yes. ओके, ऑलराइट, सो हैप्पी टू सी यू। Thank you. Good राइट, morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो I think people will take some time to join, but let's start our discussion and we'll move on to topic, core topic within some time. So, Datta bhai, it's really a pleasure to have you here today. And for the participants who are new, just want to inform you that so this session is being organized by Meditation Club. So we have taken an initiative. हमने एक initiative लिया है जिसमें कि हम फ्री में रोज सुबह 6:30 to 7 मेडिटेशन सेशंस लेते हैं। इसमें कोई भी जुड़ सकता है। इट इज़ फॉर ऑल द एजेस एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है वेयर पीपल हैव टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप और उनको रोज रात को मीटिंग लिंक मिल जाएगा सुबह के सेशन का। The objective of this particular initiative is कि today we see that mental health issues are increasing day by day, and all of us, despite of our profession, our age, face some kind of stress or tension or other kind of mental health issues, right? So it's very important that कि हम लोग खुद को empower करें, and meditation has been a very very important tool or exercise or activity which you can say जो कि हमें self empowerment में बहुत मदद करती है। I myself have practiced meditation for the last more than 10 years, and it has transformed me as a person. So I know how much it is helpful, and then realizing that हमारे some like-minded people like Ritanshu, Hitesh, हम लोग ने ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें we are helping people how meditation can how they can learn meditation so easily, and how they can get benefited out of it. तो इसी सीरीज में हम लोग ने ये भी डिसाइड किया है कि हम हर संडे को एक एक्सपर्ट सेशन रखेंगे जिसमें कि हम एक गेस्ट स्पीकर को बुलाएंगे, एंड देन विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे कि आज का टॉपिक है मैजिक ऑफ मेडिटेशन। In the coming weeks we are planning to have sessions on all the different mental health issues like overthinking, procrastination, stress management, जिससे कि we all of us face this in our life so that we can understand them better and empower ourselves to overpower them. So with that thought, आज हमारा पहला सेशन है on magic of meditation, and we are really grateful to have Datta Rokde with us. So Datta Rokde को हम दत्ता भाई बोलते हैं, like he is very close to us. So Datta Rokde is a corporate trainer. He is based out of Pune, and he is a life coach. He has, I think, given training in all the major corporate houses, including Tata's and all the renowned ones. And he's a professional trainer and a meditation practitioner for more than 15 years. So we are really lucky to have such an expert like him today with us to guide us on how meditation can bring a magic in our life. So I'm really personally very excited, and या सो सेशन का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा कि दत्ता भाई विल शेयर his views on the topic. He will share what all he has, and then at the end we will also have a real meditation practicing session where he will guide us through the commentary for the meditation. And then we can also have Q&A in between also. If you have any questions, you can unmute yourself and ask your question, और सेशन के बाद में भी हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आई थिंक विद दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। दत्ता भाई, ओवर टू यू। Yes, thank you. Good morning. As we are starting this session, can I request you all to turn on your videos if possible?
सो दैट पता चले कि सेशन कौन कौन अटेंड कर रहा है और किस स्थिति में बैठा है, चलते चलते कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या बैठकर आराम से सुन रहे हैं। एंड इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेशन, तो इसमें अगर हम पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट हम इस सेशन का ले सकते हैं। सो इफ पॉसिबल आई वुड रिक्वेस्ट यू टू turn on the videos and in participate, so that ना सिर्फ हम सुने लेकिन सुनने के साथ साथ कुछ अनुभव भी हम कर सकते हैं। ठीक है? My voice is clear, audible? Yes, loud and clear. Okay, wonderful, thank you. So जैसे आज का ये जो टॉपिक है, मैजिक ऑफ मेडिटेशन। नाउ व्हेन वी हियर दिस वर्ड मेडिटेशन, मेडिटेशन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरह की बातें सुनाई हैं। And when someone is asking you or recommending you to meditate, then you are in a soup. पता नहीं अब क्या करना है. And for me, even it was a very new experience. और जैसे मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया था, I remember almost in 2010, है ना. And I remember one of my friends working in an IT company. तो जब हम मिले थे तो जैसे फ्रेंड्स पूछते हैं यूजुअली कि अच्छा क्या कर रहे हो आजकल, तो मैंने बोला मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो यू वोंट बिलीव ही वाज लाफिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 minutes, एंड आई वाज वंडरिंग कि क्या हुआ इसको, अचानक इतना क्यों हंस रहा है, व्हाट इज सो फनी अबाउट इट। और मैंने तब उसको इग्नोर किया। एंड लेटर ऑन आई रिमेम्बर कि विद इन 3 to 4 months टाइम उसको ऑन साइट जाना पड़ा। सिंस ही वाज इन आईटी कंपनी, तो उनको यूके भेजा गया, एंड ही वाज वर्किंग देयर like maybe couple of months, 2 3 months again. And that time I used to we were in touch, through messages, SMSs and all. And I used to send some interesting good morning messages to him, some spiritual with a spiritual message, again about meditation and all. So there was a message which I sent him once, and there was something written about peace, and there were a lot of question marks below when his response. And again, I thought like maybe he's trying to make fun of me. So मैंने उसको वापस ignore किया. Couple of days again, there was another message जहाँ पे लिखा था something about inner stillness, and then his response was inner stillness, is it possible, and question mark. And then I felt there is something is not right. Let me talk to him. और जब मैंने उससे बात की तो पता चला कि he was in a very different stage of his life, very very depressed. एंड बात करते करते कई सारी बातें अनकवर हुई, और तब पता चला कि उसने जैसे कहता था कि मैं ईमेल टाइप करता हूँ एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ मी, बट स्टिल आई स्ट्रगल टू फाइंड वेयर इज दैट सर्च बटन, सेंड बटन। तो सोचो कि हम जब एक डिप्रेशन वाले स्टेट में हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चीजें हमारे सामने ही होती है, और फिर भी हम कहते हैं कि अरे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, है ना. तो ये हमारा ये विजन का प्रॉब्लम नहीं है. इट इज मोर अबाउट यू आर क्लाउडेड विद सो मेनी डिफरेंट थॉट्स दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस, एंड दैट इज वेयर मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे उससे फिर बात की, काउंसलिंग किया, काफी बैक एंड फोर्थ, उससे कॉन्वर्जेशंस हुए, कुछ कुछ अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए, एंड स्लोली स्लोली आई आस्क्ड हिम टू डू प्रैक्टिस सम मेडिटेशन एक्सरसाइजेस. और जब उसने वो मेडिटेशन एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस किए, तब he was able to get out of that mental state in just 2 to 3 months time. And that was the magic of meditation. कि लोगों को सालों साल लग जाते हैं वो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, but with meditation it was easy and it was very very helpful. So meditation के benefits तो हम कई जानते हैं, physical level पे, relationships में, work front पे, in every aspect of our life if we see, meditation plays a very very important role. अब मेडिटेशन की बात कैसे करें, क्या करें, we'll definitely talk about it in this session. I will assure you that by the end of the session you'll have complete clarity about what meditation is, how to meditate, and how to take that first bold step, or some simple ways of practicing meditation. Okay, so are you all ready for it?
I guess we have students joining in this whole session. Yes. How many of your students here? If you can just put it in the chat box. Yes, 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 yes. Thank you. So, जब हम another aspect of why meditation is very very important और why do we practice meditation, जैसे हम कई schools में जाते हैं, colleges में जाते हैं, and especially when I am interacting with students, I always ask them that एक scene visualize करो, okay? जैसे अपनी life का काफी एक known experience है with everyone's life, वो क्या है? जैसे let's लुक एट योरसेल्फ, ओके? जैसे इमेजिन करो जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, ठीक है? और एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपको एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आता है, ओके? नाउ द ओनली थिंग इज दैट आपको क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है मैंने ये पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, मुझे ये भी पता है कौन से बुक में, कौन से पेज पर, किस फॉन्ट में वो लिखा हुआ है, कौन सा इमेज है, उसके बाद मतलब डायग्राम कहाँ पर प्लेस्ड है, पेज नंबर, सारी चीज़ें याद होती है। बट देर इज वो एक ब्लर इफेक्ट होता है, मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है वो क्या लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा हुआ है किसी किसी के साथ? हम्म। सब कुछ याद है, लेकिन वो पेज नंबर, वो फॉन्ट, वो डायग्राम, वो सब चीज़ें याद है, लेकिन वो क्लियर नहीं है। हुआ ऐसा? हम्म। हम्म। तो कभी आपने सोचा ऐसे क्यों होता है? बिफोर इवन मेडिट वी स्टार्ट मेडिटेटिंग, ओके, वी नीड टू ट्यून आवर सेल्व्स, ओके? और वो ट्यूनिंग क्या है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये जब हम सभी के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है तो ये क्यों होता है? मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब आप चलते चलते, जैसे आप होता है ना, स्टूडेंट्स का होता है कि फॉर एग्जांपल इफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, तो कहते हैं नहीं मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट और हिस्ट्री इज वेरी बोरिंग, वी हैव टैग्ड एवरी सब्जेक्ट विद समथिंग। एंड फिर धीरे धीरे क्या है, वो बोल बोल के हमने क्या किया, वो उस बिलीफ को बहुत स्ट्रांग बना लिया। और फिर कुछ ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स हम बोलते रहते हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें अपने को बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को सुनाते रहते हैं कि भाई मुझे ना इतना मैंने याद किया इस टॉपिक को, लेकिन मुझे याद ही नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, या इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट रिमेम्बर, इट्स वेरी हार्ड। ये ऐसी ऐसी बातें हम क्या करते हैं, अपने आप को सुनाते रहते हैं और अपने फ्रेंड्स को सुनाते रहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, भले आप कितनी बारी उसको तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, बट समहाउ आप जब याद करते हैं उसको याद हो भी जाता है, बट स्टिल यू हैव क्रिएटेड दैट मेंटल ब्लॉक। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी हार्ड, आई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, और आई डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक बिलीव्स, एक मेंटल ब्लॉक्स बना देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, ये वाला एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में होता है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्टूडेंट, ओके, आई नीड टू चेंज द डायलॉग्स, द लैंग्वेज दैट आई स्पीक टू माई सेल्फ। मेरा जो सेल्फ टॉक है, मैं क्या अपने साथ बातें करता हूँ, बातें करती हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें सबसे पहले ये स्क्रिप्ट चेंज करना ज़रूरी है। आप जब भी पढ़ाई के लिए बैठते हैं, जब भी आप अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, तो हमेशा व्हेन इट कम्स टू स्टडीज और एनी पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आपको पता है डिफिकल्ट है, नहीं याद रह रहा है, लेकिन स्टिल यू स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ दैट दिस इज वेरी इजी, आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई लव दिस सब्जेक्ट। इस तरह से जब आप बोलना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यू ट्यूनिंग योरसेल्फ टू पॉजिटिविटी। और फिर उसको याद करना या वो चीज़ याद रहना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो बेसिक फाउंडेशन, जब भी आपको मेडिटेशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यू हैव टू प्लेस दैट पॉजिटिविटी फर्स्ट इन योर लाइफ। और उस फाउंडेशन पे फिर आपको वो जर्नी करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट हैविंग दैट पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन विथ योर सेल्फ। एक गुड फीलिंग में अपने आप को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे और वो आपको मेडिटेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिटेशन, मेडिटेशन तो बहुत बहुत इजी है, ओके? आप ये तो वीडियोस ऑफ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन कैन वी डू वन सिंपल एक्सरसाइज? अभी 1 मिनट के लिए हमें करना क्या है, 1 मिनट के लिए
वी आर जस्ट गोइंग टू सिट इन साइलेंस फॉर अ मिनट, ओके, 1 मिनट, ठीक है। सो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप जहां भी बैठे हो आराम से बैठ जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट क्लोज योर आइज। थैंक यू। सो दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज, जहां पर मैंने आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। जैसे ना कोई म्यूजिक चल रहा था, ना कोई कमेंट्री था, ना आपको कोई भी प्रकार का बैकग्राउंड सॉन्ग या कुछ और प्ले हो रहा था। सो इट वाज जस्ट अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज टू सिट इन साइलेंस फॉर 1 मिनट। तो अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आपने इस एक्सरसाइज को किया तो क्या हुआ, योर माइंड was automatically started settling the thoughts। जो भी आपके माइंड में जो हलचल हो रही थी, वो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो थॉट्स धीरे 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 जैसे सेटल होने लगते हैं। और यहाँ पे आप अपना एनर्जी जो है वो गेन करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे आपका एनर्जी, जब आप बात कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो बैटरी धीरे धीरे लो हो रहा है, ड्रेन हो रही है एनर्जी। पर जैसे ही आप एक रेस्ट वाली पोजीशन में आते हैं, जैसे रात को आप सोते हैं, या अभी जैसे आपने सिंपल एक्सरसाइज किया, तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो दैट इज हाउ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक मेडिटेटिव एक्सरसाइज, जहाँ पे आप अपने आप को सेटल कर रहे हो, अपने थॉट्स को सेटल कर रहे हो। I would like to share one simple case study with you. Now, this case study is of one school, okay? न्यू हैम्पटन स्कूल है कराची में। सभी को पता है कराची कहाँ है? हम्म, कराची पाकिस्तान में, राइट। सो अब जैसे और स्कूल्स होते हैं, वैसे इस स्कूल का भी बच्चों के, मतलब पेरेंट्स के बच्चों को लेकर, टीचर्स के बच्चों को लेकर कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे। हाँ, जैसे हर स्कूल में होते हैं। बच्चों के बारे में वो कंप्लेन कर रहे थे कि बच्चे आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनके स्पोर्ट्स कम हैं, एब्सेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, डिजिटल गैजेट्स जो है उनके पास बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं, एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। अब हुआ ये कि देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हु अप्रोच द स्कूल, और मैनेजमेंट से उन्होंने बात की और कहा कि ये जो टिपिकल प्रॉब्लम्स आप बच्चों में ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। एंड उस सॉल्यूशन क्या था, दैट सॉल्यूशन वाज कि हम बच्चों को मेडिटेशन कराएं। तो अब मेडिटेशन की बात आई तो फिर मैनेजमेंट को काफ़ी सोचना पड़ा। तो बैक एंड फोर्थ उनके मीटिंग्स हुए, और फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया सबने मिलके कि ओके, विल यू नो स्टार्ट विद दिस होल प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट कर लेते हैं उसको, देयर इज नो नो हार्म। और फिर अगले दिन उन बच्चों के क्लासरूम्स में स्पीकर्स लगाए गए, कॉरिडोर्स में स्पीकर्स लगाए गए, और बच्चों के टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको करना क्या है। जैसे आप अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठे, तो जैसे ही हर सेशन स्टार्ट होता है, तो सेशन शुरू होते ही आपको म्यूजिक सुनाई देगा, और जैसे म्यूजिक सुनाई देगा आपको क्या करना है, बच्चों को साइलेंस में बैठाना है। नाउ इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट। जैसे बच्चे तो काफ़ी हलचल करते रहते हैं, उनकी मतलब उनको चुप कराना या उनको साइलेंस में बिठाना इज़ अ बिग टास्क। बट धीरे धीरे जैसे ही वो म्यूजिक शुरू होता था, आदत लग गई उनको। when in a day or two's time only they were like quite accustomed, because at regular intervals before every session it was a ritual that everyone was following। तो हुआ ये कि बच्चों ने म्यूजिक सुनते थे, म्यूजिक सुनने के बाद कुछ कुछ अफर्मेशंस उनको सुनाते थे, जैसे यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी ब्रिलियंट, यू हैव गॉट गुड स्कोर्स। इस तरह से वो अच्छी अच्छी अफर्मेशन सुनते थे। और धीरे धीरे हुआ क्या कि 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, और उन्होंने देखा कि ये बच्चों में काफी परिवर्तन आ गया। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, कि उन्होंने देखा कि बच्चों के एब्सेंटिज्म कम हो गया। जो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहने लगे, एक दूसरे के लिए केयर करने लगे, अपनी चीजें शेयर करने लगे, एंड दैट होल एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम वाज वेरी वेरी पॉजिटिव। उन्होंने देखा कि बच्चों का बच्चों के स्कोर्स में काफी इम्प्रूवमेंट आ गया।
और ओवरऑल बच्चे जो है काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगे। उनका वो जो डिजिटल एडिक्शन था वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया, काफ़ी फोकस्ड रहने लगे, अटेंटिव हो गए, बहुत अच्छे से सुनने लगे, बातों को रिस्पेक्ट करने लगे, वो वैल्यूज़ और ज़्यादा उनमें ग्रो होते हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया। और पेरेंट्स का क्या हुआ, पेरेंट्स तो वेट करते थे कि बच्चे हमारे घर कब आए, क्योंकि जब घर आते थे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर वो घर आते थे। और बच्चों के साथ क्या हो रहा था, बच्चे वेट करते थे कि हम अगले दिन स्कूल कब जाए, बिकॉज वो जो एनर्जी थी वो स्कूल में उन बच्चों के क्लासरूम्स में, इट वॉज वेरी वेरी पावरफुल, इट वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव। सो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। तो आप सोचो कि पाकिस्तान जैसा देश, जिस देश के लिए सारी दुनिया क्या कहती है हम सब जानते हैं, और वहाँ के बच्चे मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम, आप भारत में रहते हुए, हाँ, जो बड़े हैं छोटे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भारत के लिए, हाँ, कहते हैं ना, विश्व गुरु है, सारे विश्व को योग सिखाने वाला देश कौन सा है? भारत है। तो हम इस बात को कहाँ तक अपनी लाइफ में उतार पाए हैं, कितना हम प्रैक्टिस कर पाए हैं, तो ये हमें अपने आप से पूछना है ना। जब सब इसका बेनिफिट देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में वो बेनिफिट्स उनको दिखाई दे रहे हैं, तो हम इस बात में पीछे क्यों हैं? तो इसलिए इट समथिंग सिंपल, एज सिंपल एज सिटिंग इन साइलेंस फॉर 1 मिनट कैन रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, जब भी आप कोई अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, हाँ, तो दुनिया में भी लोग कहते हैं ना कि भाई भगवान का नाम लेकर शुरुआत करो। तो वो 1 मिनट साइलेंस का जो एक्सरसाइज है, उसमें आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो, अपने आप को पूछ सकते हो कि मुझे क्या चाहिए, भगवान को याद करके आप उस काम की शुरुआत कर सकते हो। तो सोचो, वो भगवान को याद करके वो काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस काम में सफलता तो जरूर मिलेगी। और फिर जब पढ़ने के लिए भी बैठते हैं तो आप अपने आप को याद दिलाओ कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, वो सब मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगा, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, आई एम वेरी हैप्पी, आई लव दिस सब्जेक्ट, अच्छी अच्छी बातें आप अपने आप को याद दिलाओ। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, व्हेन यू ट्यूनिंग योरसेल्फ टू पॉजिटिविटी, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपको एनहेंस करेगी, आपको हेल्प करेगी। और जो कुछ आप पढ़ेंगे वो इन्फॉर्मेशन रिटेन होने के लिए एक बहुत स्ट्रांग कमांड मिलेगा अपने सिस्टम को। तो ये तो कर सकते हैं, पढ़ाई के पहले भी और पढ़ाई के बाद भी। आप 1-2 मिनट साइलेंस में बैठ के इस तरह से आप अपने आप को एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में आप लेकर आओ, और अपने आप को अच्छी अच्छी बातें याद दिलाओ। ठीक है? तो इस तरह से ये सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस से आप स्टार्ट कर सकते हो। आर यू ऑल विद मी? सुन रहे हैं? क्योंकि मैं बोलते ही जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हैं, लेकिन आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस। आर यू एबल टू रिलेट टू वट एवर आई एम सेइंग? आपको अभी तक जो सुना है उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। great। तो आगे बढ़े। तो जब हम अभी मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन क्या है, आप लोग क्या समझते हैं मेडिटेशन क्या है? आप रिस्पॉन्स अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्हाट इज मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू यू? आई होप आई एम अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस। कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। फोकस ऑन प्रेजेंट, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, प्रोसेस टू रिलैक्स एंड एनर्जाइज द माइंड। बहुत अच्छा। हाँ, तो ये सारी जो रिस्पॉन्सेज है वो सारे रिस्पॉन्सेज भी परफेक्ट है। और हर एक का जैसे एक अपना अपना एक डेफिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है मेडिटेशन का। एंड वो द होल ऑल द रिस्पॉन्सेज आर राइट, राइट। लेकिन ये एक और सिंपल तरीके से मैं यूजुअली समझाता हूँ लोगों को कि मेडिटेशन क्या है। अभी अगर हम अपने आप को देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली हम लोग एक ऐसे स्पेस में होते हैं, या वी आर कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्बिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे हम चल रहे हैं, चलते चलते भी आंखों से देख रहे हैं तो काफ़ी इंफॉर्मेशन हम लोग कैप्चर कर रहे हैं।
है ना। आप चाहो ना चाहो, बट अगेन यू आर कॉन्स्टेंटली वो इनटेक चल रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अब इतना सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके हम क्या करते हैं, बहुत बार वो इंफॉर्मेशन यूजफुल होता है, बहुत बार तो वेस्ट ही होता है। तो आई जस्ट गिव यू वन सिंपल एग्जांपल विच आई ऑलवेज गिव। जैसे एक स्पॉन्ज होता है फॉर एग्जांपल, बिल्कुल लाइट वेट होता है ना। जैसे बच्चा कोई जन्म लेता है तो बिल्कुल लाइट होता है, इजी होता है, उसको दुनिया का कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है, राइट। एंड वो एक ब्लैंक स्लेट की जैसा है। बट धीरे धीरे लेट से आपने उस स्पॉन्ज को, फॉर एग्जांपल एक बकेट है पानी का, उसमें डिप किया, तो उसको बाहर निकालने के बाद उसकी अवस्था क्या हो जाती है, इट बिकम्स वेरी हैवी, है ना। उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया उस चीज़ को, सारा इंफॉर्मेशन जैसे गैदर कर लेते लेते वो क्या हो गया, वो फुल हो गया। उसमें अब और इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करेंगे तो अंदर नहीं जाएगी, और पानी डालने की कोशिश करेंगे तो अंदर नहीं जाएगा, राइट। वाई? बिकॉज दैट स्पॉन्ज विच इज ओरिजिनली वेरी सॉफ्ट, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, वो पूरा सैचुरेट हो गया है, राइट, भर गया है। अब इस स्पॉन्ज को हमें उसमें और पानी डालना है तो क्या करना होगा, उसको स्क्वीज करना होगा, राइट। तो सिमिलरली हमें भी क्या करना होगा, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन इज प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग द स्पॉन्ज सो दैट वी क्रिएट मोर स्पेस, मोर लाइटनेस, जो उसका ओरिजिनल स्टेट है स्पॉन्ज का, है ना। बहुत हल्का भी है और उसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी है। तो हमारे अंदर भी वो लाइटनेस है, वो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, बट हमने क्या किया है, उसको बहुत ज़्यादा सैचुरेट कर दिया है विथ लॉट ऑफ स्टफ विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर करके उसको भारी कर दिया है, भर दिया है। तो उसको हमें क्या करना होगा, उसको हमें लाइट करना होगा, है ना। तो मेडिटेशन का ये प्रोसेस जब हम सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो लाइटनेस आता जाएगा और वो स्पेस भी क्रिएट होता जाएगा, है ना। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिटेशन, अब मेडिटेशन के तो इतने सारे अलग अलग टाइप्स है, तो हमने कौन सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, ओके। थ्रू क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस हम इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे, ओके। इसमें विजुअलाइजेशंस है बहुत सारे, जैसे अलग अलग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, जैसे त्राटक है, कुंडलिनी है, फिर ताई ची है, चीकोंग है, एंड एन नंबर ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, प्रेयर्स है, कॉन्टेम्पलेशन है, विजुअलाइजेशंस है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस। अब मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप ये 4 बातें बस ध्यान में रखना, जिसको हम 4 रूल्स भी कहते हैं। जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो इन 4 बातों का जब ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए उस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सबसे पहला है, जब भी आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो पहली एक सबसे डिफ़िकल्टी जो मोस्ट ऑफ देम दे हैव इज़, जैसे ही आप आंखें बंद करके बैठ जाते हो तो क्या होता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आपको याद आते हैं, अलग अलग फाइल्स फोल्डर्स खुल जाते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, बहुत सारी बातें आपको याद आएंगी, लेकिन आपको उन बातों में फंसना नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आंखें बंद कर ली, आपको कोई व्यक्ति याद आया, उस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया, भला किया बुरा किया, वो याद करते करते फिर आपको उसके रिलेटेड कोई और बात याद आएगी, ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, उन बातों में चले जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि हम क्यों बैठे थे। सो द फर्स्ट रूल इज, इफ देर आर वेस्ट थॉट्स, इधर उधर की बातें याद आ रही है तो इट इज ओके, बट जस्ट डोंट गो इनटू द स्टोरी ऑफ इट। जैसे एरोप्लेन में बैठते हैं तो आपको पता है ए डेस्टिनेशन से आपको बी डेस्टिनेशन जाना है, तो एरोप्लेन बराबर वहीं चला जाता है, बादल रहते हैं ऊपर बहुत सारे, लेकिन वो बादलों को देख के कभी रुकता नहीं है, उसको पता है मेरा डेस्टिनेशन क्या है, एंड वही चला जाता है। इन द सेम वे सेकेंड रूल ये कहता है कि आई नीड टू फाइंड द रीजन वाई आई एम मेडिटेटिंग, क्यों मेडिटेशन कर रहा हूँ। जैसे आपको बहुत गुस्सा आता है और आपको शांत रहना है, आप बहुत ज़्यादा थक गए, आपको रिलैक्स करना है, सो व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, व्हाई यू मेडिटेटिंग, आस्क योरसेल्फ। एंड फिर उस डायरेक्शन में आपके थॉट्स को ट्यून करना मतलब सीक्वेंस करना सीखो, है ना। वो कैसे करना है, विल लुक इनटू दैट। थर्ड थिंग इज, जब भी आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग योर फीलिंग, कि हम कैसा फील करते हैं मेडिटेशन के पहले और मेडिटेशन के बाद में। वो फीलिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, एंड दैट फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड द लास्ट थिंग इज कि जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करते वक्त हमें बस यही ध्यान रखना है कि अच्छा या बुरा मेडिटेशन नहीं है,
हमें सिर्फ करना क्या है, अपनी फीलिंग को, उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना है ना। देयर इज नो गुड और बैड मेडिटेशन, हमें अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय करना है। ठीक है, तो ये 4 बातें हैं। आपको बस अगर इतना याद रखेंगे तो आपका ये मेडिटेशन का एक्सपीरियंस जो है, जर्नी जो है, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। ठीक है, और देर इज वन मोर अनसेड रूल। अनसेड रूल क्या है? इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा झटका आ जाए, एंड इट इज ओके। ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो स्ट्रगल करते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, तो आप मेडिटेशन करना शुरू करो तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से आप रेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अभी हम क्या करेंगे, कुछ सिंपल मेडिटेशन एक्सरसाइजेस आपको कराता हूँ। ओके, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विद सम सिंपल मेडिटेशन एक्सरसाइजेस हम लोग शॉर्ट शॉर्ट मेडिटेशन कमेंट्रीज के थ्रू हम उसको एक्सपीरियंस करते जाते हैं। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई ऐसी जगह बैठो जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जैसे जैसे हम ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो विच नीड्स थोड़ा एक पीसफुल एनवायरनमेंट अराउंड, ताकि आप अच्छे से सुनो और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सको। ठीक है, सो लेट अस सिट बैक। ओके, जब भी आप मेडिटेशन करो तो आपको आराम से बैठना है। ओके, नॉट नेसेसरी कि आपको कोई मैट डाल के बैठना है, आप चेयर पर कर सकते हो, नीचे बैठ के कर सकते हो, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल रहे वैसे आप कर सकते हो। ओके, आपके आपके आपको सीधा बैठना है, बिल्कुल सिट स्ट्रेट। ओके, आपके हाथ आप चाहो तो ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो लैप पे, या ऐसे रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। और usually we practice open eye meditation, however if you're doing it for the first time I would request you कि आप भले आंखें बंद करके बैठो, कोई बात नहीं। ठीक है, सो आराम से बैठकर गहरी सांस लेंगे। टेक a deep breath once again and out। और जैसे आप आराम से बैठे हैं, नोटिस करें आपके आसपास की आवाज़ों को, जो आपको दूर दूर तक सुनाई दे रही है, और धीरे धीरे आपका अटेंशन, आपका ध्यान आपके आसपास की आवाज़ों पर, और धीरे धीरे फील करेंगे आपके पैर जमीन पर, and gradually bringing your attention back to your breath। आपका ध्यान वापस आपके सांस की ओर। फील करेंगे उस हवा को अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए। as you breathe in and out, making yourself more comfortable with every breath। and now look at the screen of your mind। देखिए अपने मन की स्क्रीन पर इस समय कौन कौन से फाइल्स, फोल्डर्स खुले हैं, कौन कौन सी बातों के बारे में आप सोच रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व। और अब धीरे धीरे उन सारे फाइल्स, फोल्डर्स को क्लोज करते जाओ। और जैसे जैसे आप उन फाइल्स को, फोल्डर्स को क्लोज कर रहे हैं, आपका मन बहुत शांत हो रहा है। and look at that space which is open। अब आप अपने आप को पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इनवाइट करें इस रूम में।
और याद दिलाए अपने आप को कि हम पूरी तरह से प्रेजेंट हैं इस एक्सपीरियंस को करने के लिए, कुछ नया अनुभव करने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। Take a deep breath and bring your attention back. So जैसे अभी एक सिंपल एक्सरसाइज हमने किया, सिर्फ अपने आप को हमने रिलैक्स किया, रिलैक्स करके हमने बाहर नहीं गए, हम अंदर गए और अंदर ही अंदर सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व किया कि मेरे मन में इस समय क्या क्या विचार चल रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं, और उन सबको ऑब्जर्व करके सिर्फ क्या किया, अपने आप को गाइड किया, माइंड को जैसे ट्रेन किया, गाइड किया कि हमें क्या करना है, और उस पॉइंट पे हमने फोकस कराने के लिए इंस्ट्रक्ट किया, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ पकड़ कर उसको लेकर चलते हैं साथ में, है ना। तो बस वही हमें करना है अपने माइंड के साथ में, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। और अपने आप को सिर्फ हमें ये याद दिलाना है कि आई कैन डू इट, इट इज़ ईजी एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल फॉर मी, है ना। तो ये जब हम अपने आप को सिखाएंगे, कराएंगे, तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा। वैसे भी हम बातें तो करते हैं अपने से, फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, सभी के साथ बात करते हैं, बस ये क्या है, ये अपने आप के साथ बात करना हुआ, है ना। अब नेक्स्ट जो है, जैसे आप देखेंगे कि यूजुअली मेडिटेशन एक्सरसाइजेस जब कोई कराता है आपको, तो देर आर वेरी कॉमन इंस्ट्रक्शंस दैट दे गिव। जैसे आप लेट्स से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिया कि लेट अस सिट बैक, ओके, और सिट स्ट्रेट। अब आप तो बैठे ही हैं, ओके, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप कंफर्टेबली भी बैठे हैं, आराम से भी बैठे हैं, सीधे भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली अपनी चेयर पे थोड़ा सा हिलते डुलते हैं। क्यों? आप तो ऑलरेडी आराम से बैठे थे, फिर ये हिलना डुलना क्यों? क्योंकि माई माइंड वॉज वॉन्डरिंग समवेयर एल्स, और मुझे लगा कि शायद मेरा पोस्चर ठीक नहीं है, मैं ठीक से नहीं बैठा हूँ। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो कमांड आया, तो मैंने क्या किया, अपना पोजीशन को वापस रीचेक किया और वापस अपने आप को सेट करने की कोशिश की, है ना। नाउ यू ब्रीदिंग इन एंड आउट, काफी अच्छे से ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन सुनते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, देन आई रिमेंबर, हाँ मुझे सांस भी लेनी है और गहरी सांस लेनी है। आई वॉज रीडिंग अबाउट एक ओवर थिंकिंग के बारे में, and there was this one exercise which one gentleman recommended, and he said कि काफी लोग है ना, लोगों को सोचने की आदत बहुत होती है, और ये ब्रीदिंग जो आप करते हैं, आप हाफ एन आवर कॉन्शियसली टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड आउट, आप देखना कि आपको ऑटोमेटिकली जैसे आपका ध्यान आपके ब्रेथ पर आएगा, तो ऑटोमेटिकली माइंड में जो भी वो क्लटर है, बहुत ज्यादा कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सारे थॉट्स डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज द मैजिक ऑफ एक सिंपल एक्सरसाइज ऑफ ब्रीदिंग इन एंड आउट कैन डू फॉर यू, है ना। बस अपने आप को क्या होता है, ये दो चीजें अगर हम सेट कर लेते हैं एंड देन वी फोकस आवर अटेंशन ऑन ब्रीदिंग ऑल्सो, तो वो भी काफी आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब ये आप हम साथ में करते हैं, ठीक है। आराम से बैठकर, जहां भी आप बैठे हैं, बहुत ध्यान से देखिए अपने आप को, और अब यहां से ले चले अपने लाइफ की कोई ऐसे सीन में जब आपको किसी ने बहुत सुंदर गुलाब का फूल गिफ्ट किया हो, एज ए टोकन ऑफ लव और अप्रिसिएशन, या गार्डन में कोई फूल आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा हो। देखिए उस गुलाब के फूल को, कैसे उसको अपने आपने अपने हाथ में पकड़ा। अब बहुत ध्यान से देखना है उसके स्टेम को, उसकी डंडी को, उसका रंग, देखिए उसके पत्तों को, पत्तों के ऊपर की लाइनिंग्स, उसका कलर, उसका टेक्सचर, और धीरे धीरे देखिए उसकी पंखुड़ियों को, उसका रंग, उसके बदलते शेड्स। अब अपनी उंगलियों को फिराते हुए उसकी डंडी से पत्तों पर, पत्तों से पंखुड़ियों पर, swirling your fingers over the stem, leaves and petals.
धीरे धीरे उस फूल को ले आए अपने नाक के पास और उसकी खुशबू को, उसकी महक को फील करें। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, एंजॉइंग दैट फ्रेग्रेंस ऑफ रोज, और उसकी खुशबू को, उसकी महक को अनुभव करते हुए आ जाएंगे वापस। वेलकम बैक, थैंक यू। आ गए सभी वापस? सभी साथ में हैं, सुन रहे हैं? तो आप उस फूल को टच कर पाए, उसकी खुशबू को, उसकी महक को फील कर पाए? वर यू एबल टू सी इट? ये 3 बातें अपने आप में चेक करना। आप उसके रिस्पॉन्सेस चैट बॉक्स में डाल सकते हो कि हाँ, क्या आप ये तीनों तीनों में से कोई एक चीज भी कर पाए? ये बहुत एक सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट है, राइट? थैंक यू। तो इसको जैसे हम एक लिटमस टेस्ट कहते हैं, एक सिंपल एक्सरसाइज जिससे हमें पता चलता है कि क्या हम मेडिटेशन करने के लिए तैयार है या नहीं है। तो इन एक्सरसाइजेस को जैसे हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे सेंसेस जो है हम यूज कर रहे हैं ना। जैसे आंखों से उस गुलाब के फूल को देखा है, या उसको टच कर रहे हैं, उसकी खुशबू को फील कर रहे हैं। तो ये जो हमारे सेंसेस है, आपको करना क्या है, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं या कोई भी चीज को विजुअलाइज करते हैं, तो आप अपने सेंसेस को क्या करना है, हुक करना है। उसको देखना है, उसको टच करते हैं तो उसका टेक्सचर कैसा होता है। ये सब चीजें जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन उस इमेज के साथ, उस विजन के साथ, वो विजुअल्स जो भी आप बना रहे हैं उसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट होता जाएगा। एंड आपका क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो और बेहतर होता जाएगा। That's fine if you're not able to feel the fragrance of that rose, that is fine. है ना, एटलीस्ट एक चीज भी आप कर पाए, विच मीन्स you're there. ओके, सो अगर आप 2 कर पा रहे तो और अच्छा, 3 कर पा रहे तो और अच्छा, है ना। जैसे जैसे आप वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप और अच्छे से उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड एटलीस्ट आप 2 चीजें कर पाए। मैं तो इनिशियली व्हेन आई डिड दिस एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आई वाज नॉट एबल टू सी इट ऑल्सो। सो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली इसको, इस एक्सरसाइजेस को ऐसे और कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यस। चलो आगे बढ़े। हम्म अब अगला एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, सिंपल है। आराम से बैठ के वापस टेक अ डीप ब्रेथ एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। अब जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, आप वहां से ले चले अपना अटेंशन, अपना ध्यान कोई ऐसे सीन में जब आप रात के समय खुले आसमान के नीचे थे। बहुत ध्यान से देखिए अपने आप को। खुला आसमान, आसमान में टिमटिमाते हुए सितारे, और देखिए खुद को कैसे आप अपने आप को देख रहे हैं उस खुले आसमान के नीचे। और अब बहुत ध्यान से देखें ऊपर चमकते हुए सितारों को, टिमटिमाते हुए छोटे बड़े, पूरा आकाश तारों से भरा। और देखिए उन तारों के बीच एक सितारा चमक रहा है, which holds your attention, और आप उस सितारे को देख रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखें उस सितारे को, खुले आसमान से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अपनी वाइट लाइट फैलाता हुआ। वो सितारा खुले आसमान से धीरे धीरे नीचे, और देखिए उस सितारे को आकर सेट हो गया आपके मस्तक के बीच, इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। बहुत ध्यान से देखें मस्तक के बीच उस सितारे को, और उस सितारे की वाइट ब्राइट लाइट को। और जैसे जैसे वो लाइट आपके पूरे मस्तक से चेहरे पर फैल रही है, बहुत ध्यान से देखिए आपका चेहरा ग्लोइंग विथ वाइट लाइट, आपके चेहरे की चमक बहुत बहुत सुंदर नजर आ रही है।
उस लाइट में, और धीरे धीरे देखिए इस सितारे की लाइट आपके पूरे बॉडी में फैल रही है। एवरी सेल, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज फुल ऑफ लाइट। ये सितारा शांति का सितारा है, और ये लाइट शांति की लाइट है। सफेद शांति का प्रकाश है। मेरे मस्तिष्क में, मेरे पूरे शरीर में ये प्रकाश फैल गया। मेरा मन बिल्कुल शांत है, स्थिर है, लाइट है। और देखिए धीरे धीरे ये लाइट मेरे आसपास, मेरे चारों ओर फैल रही है। और देखिए इस प्रकाश के बीच अपने आप को बहुत बहुत हल्का, बहुत बहुत लाइट, शरीर के अंदर की लाइट मेरे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त और शक्तिशाली अनुभव करा रही है। और शरीर के बाहर की लाइट मुझे सभी विघ्नों से, परेशानियों से, चिंताओं से, भय से, सारे विघ्नों से बिल्कुल सेफ और सुरक्षित अनुभव करा रही है। आई एम फुल ऑफ पीस, full of light, very powerful. Feel that energy around you of peace, of light, और उसको फील करते हुए धीरे धीरे ले आए अपने आप को वापस। वेलकम बैक। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? साथ में रहे, सभी कनेक्ट कर पाए? तो इस तरह से आप रेगुलर इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं विद सम गाइडेड कमेंट्रीज, है ना। और जैसे जैसे आप वो स्टेप्स सुनते जाते हैं, फॉलो करते जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना भी और इजी हो जाता है ना। ठीक है, किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। वी हैव सम टाइम। तो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? किसी के कोई प्रश्न हो या किसी को कोई मतलब अच्छा अनुभव हुआ हो, कि जितने भी दत्ता भाई ने हमें मेडिटेशन एक्सरसाइज करवाई उसमें कुछ आपने फील किया हो या कुछ ट्रबल आया हो, तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। अगर आप अभी पूछेंगे तो आपको सीधे एक्सपर्ट से सुनने को मिलेगा, अदरवाइज ये डाउट आपका हमेशा क्लियर रह जाएगा। सो आई इनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप आपके प्रश्न पूछिए। आप मैसेज भी कर सकते हैं चैट में। अनम्यूट की परमिशन नहीं है। ओके, होल्ड ऑन, लेट मी अनम्यूट यू। आप जस्ट आपका हैंड रेज करिए, आई विल अनम्यूट यू और सी इफ यू कैन। Yeah, now they can unmute. ओके, ठीक है, अभी आप कर सकते हैं। रफुल, यू कैन अनम्यूट, यस। हेलो सर, मैं ऑडिबल? हेलो। यस यस। सर बस एक डाउट है कि जैसे आप प्रैक्टिस करा रहे थे, मतलब बहुत टाइम तक बहुत सही चलता, लेकिन एकदम से आप जो गाइड कर रहे थे ना, एकदम से स्विच हो जाता है माइंड, और कुछ एकदम से स्विच होके कुछ दूसरा सोचने लग जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आता है। हम्म कोई बात नहीं, जैसे वो आदत नहीं होती है ना हमें ये सब करने की, एंड आवर माइंड इज कॉन्स्टेंटली, उसको कुछ वैरायटी चाहिए, है ना। तो माइंड का काम ही है इधर उधर वॉन्डर कर रहा है वो, क्योंकि उसको हमने ट्रेन नहीं किया है ना अब तक। तो धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको वो काफ़ी इजी होता जाएगा, है ना। कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एक होता है ना कि विद प्रैक्टिस आपको इजी होता जाएगा। और
वो डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे कम होते अनुभव करेंगे आप, है ना। तो जैसे अभी एक दो बार हुआ, तो मे बी अगली बार करेंगे तो शायद एक आध बार होगा, तो ऐसे करते करते वो कम होता जाएगा। उसके लिए जैसे आपको काफ़ी फोकस्ड तरीके से अगर करते जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को कि ये डिस्ट्रैक्शंस कम होते जा रहे हैं। इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? और किसी की कोई प्रश्न है? अनामिका, आप काफी दिनों से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ में, तो एनीथिंग जो आपको पूछना हो? अमर, आप पूछ रहे हैं सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी? यस, आई थिंक हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। रितांशु, इसको शेयर कर पाएंगे हम? हाँ, यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक है, हम यूट्यूब का लिंक आपको शेयर कर देंगे। आ, Yes, sir. Good afternoon, sir. यस, गुड हम्म, आफ्टरनून। Sir, actually, I have a question. जब मेडिटेशन कर रहे थे तो अपने आप को छत में देखा, मतलब रात के समय सितारों के बीच में, बट ऐसा ड्यूल फेस नजर आ रहे थे। मतलब एक तो हम यहाँ पे बैठे हैं वो वाली पोजीशन भी हो रही थी, और एक वहां पे बैठे हुए हैं तो वो वाली पोजीशन भी दिख रही थी, तो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा था। कोई बात नहीं। मतलब वो वाली इमेज क्लियर नहीं हो पा रही थी और यहाँ की भी इमेज, दोनों मिक्सअप हो रही थी। हम्म कोई बात नहीं। जैसे ये जो है एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस है। तो जैसे हम देखो, होता है ना, बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका देखो वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। उनके हाथ में आप एक पेंसिल दे दो, पेन दे दो, तो वो इमेजिन करते हैं चीज़ों को कि उसको विंग्स आ गए और वो दीवार से क्रॉस कर रहा है, ये हो रहा है ना। उनका तो देखो वो तो प्रेजेंट में ही रह रहे हैं, ये सीन भी देख रहे हैं, तो वो वाला विजुअलाइज भी कर रहे हैं, उसको इमेजिन भी कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या हो जाता है, और वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो एक अपने अलग लेवल पर उसको एक्सपीरियंस करते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना, मज़ा आता है उनको। तो हमें भी क्या होता है ना, हम बड़े हो जाते हैं तो उस क्रिएटिव वाले एस्पेक्ट को थोड़ा सा मिस कर देते हैं। हम इन बातों को ज्यादा पकड़ कर रखते हैं, उस चीज पे थोड़ा सा कम फोकस करते हैं। तो बस थोड़ा सा अगर हमें ये आ जाए, जैसे बच्चा बनकर अगर उस चीज को हम एंजॉय करें, उस प्रोसेस को या उस प्रैक्टिस को, तो हम और अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों की, मेडिटेशन बहुत सीरियस वाला प्रोसेस नहीं है। आप उसको एज अ किड आप एंजॉय करेंगे, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा कर पाएंगे फिर, है थैंक यू ना। सर। यस, और किसी किसी के कोई प्रश्न है? एनीवन? एक ना मैसेज आया है फ्रॉम वन सिस्टर, तो उनका मैं आंसर दे देता हूँ डायरेक्टली, आई वोंट रीड द क्वेश्चन, कि ओवर थिंकिंग के रिलेटेड है। तो ओवर थिंकिंग, जैसे कोई भी इंसिडेंस होता है लाइफ में, कुछ भी होता है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि काफ़ी सारा हमारा ध्यान जो है, लेट से बीमारी है या कुछ है, तो उस पर चला जाता है। और काफ़ी वो स्ट्रेस भी फील होता है, अनकंफर्टेबल एक फीलिंग रहता ही है। और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे वो मीट नहीं हो रहे, तो उसका भी एक स्ट्रेस बिल्ड होता जाता है कि अरे मुझे ये काम करना था, वो रह गया, इस वजह से मेरा वो मतलब कमिटमेंट्स नहीं का पूरी कर पाए, या एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो जो ओवर थिंकिंग चल रहा है, तो उसके लिए अपने आप को एक अश्योरेंस देना ज़रूरी है कि अच्छा ये जो हुआ है, मुझे इसको, इसके साथ मुझे अपने आप को डील करना है। सबसे पहली बात तो है कि मुझे इसको, मैं एस्केप नहीं कर पाती हूँ उस सिचुएशन से, मैं अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ, उसको मुझे थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। ये अपने आप को पहले समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब बहुत ज़्यादा हम ओवर थिंक कर रहे हैं, तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल है, स्टूडेंट्स है, या कोई भी है, राइटिंग वाला जो चीज़ है ना, वो काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, तो आप सुबह शाम एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, आपके माइंड में जो चल रहा है उन चीज़ों को आप लिखते जाओ, अच्छा बुरा जो भी है वो सारा लिखो। और फिर लिखने के बाद आप चेक करो कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे जो चाहिए अगर मैं वो सोच रही हूँ तो मुझे वही मिलेगा। अब ये जो सारा कचरा अगर मैं सोचते बैठूंगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका अटेंशन उसी उन्हीं बातों पर जाएगा, और वो एनर्जी आपकी और ड्रेन कर देगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करेंगे आपका वो अननेसेसरी जो सोच है, क्लटर है, वेस्ट बातें जो आप सोच रहे हैं, जो नहीं सोचनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होती जाएंगी, और आपका फोकस जो चीज़ों पे होना चाहिए वो चीज़ों पर आ जाएगा।
तो राइटिंग विल बी द बेस्ट प्रैक्टिस टू डू। तो आप उसको कंटिन्यू करना और एक्सपेरिमेंट करना उस चीज़ को, सुबह शाम, भले 10 मिनट लिखो, 5 मिनट लिखो, जो जो माइंड में आ रहा है वो बातें सारी लिखते जाओ, पढ़ो, पढ़ने के बाद आप उसको फाड़ के फेंक दो, श्रेड इट। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है ही कचरा तो कचरे में ही जाने दो उसको, ठीक है। और मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है उसके लिए, लेकिन मेडिटेशन के पहले ये सफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तब एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में रवि से। हाँ जी, मैं चेक करता हूँ इसी को। हाँ, ऐसा होता है कि हम मेडिटेशन के लिए स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? कहीं ना कहीं चलते चलते हमने वेस्ट का शॉपिंग कर लिया है। वेस्ट का शॉपिंग क्या होता है? कोई ऐसी बातों में लग गए जो नहीं करनी चाहिए थी। गॉसिप से अननेसेसरी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप गुस्सा भी करते हैं, तब भी वो काफ़ी सारी बातें वो रह जाती है। तो चेक करना कोई ऐसा वायरस तो मेरे अंदर नहीं घुस गया जो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पॉजिटिव बातें रहेंगी तो आपको स्ट्रगल फील नहीं होगा। ज़रूर कोई ऐसी बात आई है सिस्टम में जो नहीं आनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है, आप मेडिटेशन नहीं कर पाते। एकाग्रता क्यों नहीं हो पा रही है? कोई ना कोई बात बीच में आ गई। तो वो बात क्या है वो फाइंड आउट करो, और उसको कैसे क्लियर करना है वो अपने आप से पूछो, ठीक है। उसके लिए कुछ अच्छा पढ़ भी सकते हैं, कुछ अच्छी बातें सुन सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो कहीं वो गैप आ गया है वो फिल होने में हेल्प हो जाएगी। तो तब भाई इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि कुछ बुक्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे या कोई प्रैक्टिस आप रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे कि जो मतलब बिगिनर्स हैं मेडिटेशन में मतलब मेडिटेशन प्रैक्टिस में उनको हेल्प मिले। बिकॉज ये सेशन तो आपका अच्छा रहा है ना, बट इफ दे वांट टू कंटिन्यू एट देयर ओन पेस या कुछ उन्हें अच्छा कंटेंट मिले, ऐसी कोई किताब आप रिकमेंड करना चाहेंगे? सी व्हेन इट कम्स टू मेडिटेशन और प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, हमारी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हैबिट्स, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। तो अगर हमें कहीं चैलेंज आती है तो वो कंसिस्टेंट रहने में आती है। तो एक बुक जो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, शायद आपने पढ़ी भी होंगी, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स एक है जो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा, जिसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई गई है जो आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेंगी, वो हैबिट्स डेवलप करने में मदद करेगी। और वंस यू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, द मैटर इज ऑफ ऑल ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको उस बात की हेल्प होगी, है ना। मेडिटेशन करते करते और कहीं ध्यान चला दीपक जी ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, मेडिटेशन करते करते ध्यान इधर उधर चला जाता है तो उसको वापस जल्दी से कैसे ले आए। देखो, मेडिटेशन जब करते हैं, स्पेशली जब आप कमेंट्री सुन रहे हैं, सुनते सुनते भी आपको कहीं और आपका मन भटक जाएगा। तो आप जब कमेंट्री सुन रहे हैं तो अगर कहीं और चला भी जाए तो वापस जहाँ से सुन रहे हो ना, वापस वहाँ से शुरू करो। हम लोग वेट करते हैं कि चलो अभी ये टाइम तो गया मेरे हाथ से, मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा या बाद में करूँगा। सो डोंट पोस्टपोन इट, ओके। मन की आदत है भटकने की, लेकिन आपको इसीलिए अपने आप को क्या करना होगा, ट्रेन करना होगा, बार बार अपने आप को उसको ट्रैक पे लाने के लिए आपको हेल्प करनी होगी। कुछ ऐसी बात पूछो अपने आप से कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इज इट वर्थ, आस्क योर सेल्फ यस नो, एंड देन अगेन गेट बैक ऑन द ट्रैक। सो अगेन इट इज द मैटर ऑफ अटेंशन। जितना आप अलर्ट रहेंगे, अटेंशन रहेगा, उतना आपको वापस आना ईजी हो जाएगा, है ना। अंदर से वो कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है उसके लिए। आई थिंक एक चीज और हेल्प करती है, सुबह उठ के मेडिटेशन करना अर्ली मॉर्निंग। हाँ, उसमें थोड़ा ध्यान कम भटकता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डे। राइट। या अच्छा अभी एक आप किसी ने कुछ पूछा है कि मेडिटेशन कितना टाइम करना चाहिए। बिगनिंग ऑफ मेडिटेशन, हाउ मच टाइम शुड वी मेडिटेट? नाउ अगेन इट इज अप टू यू। जैसे मैंने कहा कि एटलीस्ट 1 मिनट से स्टार्ट करो आप, इनिशियली वेरी वेरी बेसिक और बेबी स्टेप अगर हम बोलेंगे। जब भी आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, सिट इन साइलेंस फॉर 1 मिनट एंड देन स्टार्ट। दैट इज समथिंग एज सिंपल एज यू कैन डू, ओके, विदाउट मच एफर्ट, and which is very much possible for everyone, okay, despite you know meditation or not, you can still do that. Again, as I
वुड लाइक टू रेकमेंड अर्ली मॉर्निंग, जैसे अभी सक्षम भाई ने भी कहा, तो वो बेस्ट टाइम होता है मेडिटेशन करने का, बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग जो हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, फीड करते हैं, वो चीज़ आपको थ्रू आउट द डे काफ़ी हेल्प करती है सस्टेन करने में उस एनर्जी को, और आपका माइंड भी काफ़ी फोकस्ड रहता है। इसीलिए आप देखो बच्चों को, बड़े मतलब कई टाइम, हाँ काफ़ी टाइम से हम सुनते आते हैं ना कि छोटे थे तब से, कि आप नहीं उठकर सुबह जल्दी उठकर आप पढ़ाई करो। वाई? बिकॉज तब आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छा रेस्ट मिलता है, माइंड भी काफ़ी रेस्ट करके एक्टिव रहता है, मतलब इट्स इन द, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है उस टाइम पे। उस टाइम पे अगर आप अपने माइंड को स्टेबल रखना सिखाते हो, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस या अच्छी अच्छी बातें याद दिलाते हो, तो वो एनर्जी देखो दिन भर में कितना अच्छी तरह से काम करेगी। तो उसके लिए टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, इट इज़ द मैटर ऑफ हाउ मच आई लव दैट पर्टिकुलर थिंग टू डू। इफ आई लव टू मेडिटेट, आई सिट फॉर 5 minutes, 10 minutes, half an hour, 1 hour easily, but I need to love myself more for that. Why? Because you're doing it for your own self. Why? Because you love yourself more. Why? Because you really want to give world more than you can think of. तो अगर ये अंदर है तो ऑटोमेटिकली वो टाइम कंस्टेंट निकल जाएगा। टाइम का नहीं सोचो, क्वालिटी का सोचो। हाउ आई वांट टू फील, व्हाट डू आई वांट टू डू विद दिस, हाउ दिस कैन हेल्प मी एंड अदर्स, हाउ इट कैन हेल्प मी इन माय रिलेशंस। तो कई एस्पेक्ट से अगर आप इसको सोचेंगे तो आप देखेंगे कि उसका टाइम कंस्टेंट वो निकल जाएगा, आप इजीली वो चीज़ कर पाएंगे, है ना? कोई चीज़ से प्यार होता है तो आप सोचते नहीं है कितना टाइम लगेगा, यू जस्ट डू इट। आई ठीक है। थिंक दीपक जी बीच में पूछ रहे थे सर व्हाट टाइम इज गुड, या ओके, यस, आप में से कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, प्लीज गो अहेड। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक्चुअली क्वेश्चन है कि हमारा जो माइंड अभी, हम कितना ही ट्राई करें एकदम ब्लैंक कभी भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रोसेस चलता रहता है उसमें। मतलब खाली नहीं बैठ सकता। अगर हम ट्राई भी करते कि थोड़े टाइम हम बस खाली बैठेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो सर उस पोजीशन में जाना बहुत मुश्किल है। तो वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन कभी भी खाली होता नहीं है इस तरीके से। हाँ, देखो माइंड जो है आपका कॉन्स्टेंटली सोचने का काम करेगा, एंड ये मिथ है कि हमको उसको जीरो थॉट लेवल पे ले आना है। वो मेडिटेशन नहीं है, विच मीन्स यूर डेड। ओके, तो माइंड सोचता ही रहेगा, लेकिन वो क्या सोच रहा है और किस क्वालिटी के थॉट्स क्रिएट कर रहा है वो हमारे हाथ में है। सो आर एफर्ट इज टू ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ थॉट्स। आर आर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू ब्रिंग इट टू जीरो। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं भी है और करना भी नहीं है। ओके, रेदर हमें ये देखना है कि वो थॉट्स क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी कम कैसे हो, और जो क्वालिटी है उन थॉट्स की वो अच्छी कैसे हो, है ना? आई थिंक आपको और डिटेल में, और आई थिंक सक्षम एंड टीम विल हेल्प यू कि और कैसे किया जा सकता है, या और किस तरह से हम और इन थॉट्स को कैसे, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में शायद आपको बता देंगे। बट एज ऑफ नाउ यू नीड टू ओनली अंडरस्टैंड दैट नो नीड टू गेट डाउन टू जीरो लेवल। जस्ट मेक श्योर दैट इट इज विथ मेडिटेशन इट कम्स डाउन, नंबर ऑफ थॉट्स जो है हमारे कम हो। यस, ओके सर, थैंक it should it should channelize toward positivity, it's about channelizing it, not stopping it. Right. Rashi, yes, any other questions, anyone? No. ओके, सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं सबको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि हमने एक इनिशिएटिव लिया है बाय द नेम मेडिटेशन क्लब, जिसमें हम रोज सुबह 6:30 से 7 एक मेडिटेशन सेशन रखते हैं। इट्स अ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव, और ये हमने इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें हम रोज रात को लिंक शेयर करते हैं फॉर द मेडिटेशन सेशन नेक्स्ट डे एट 6:30। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रितांशु इसका लिंक शेयर कर दीजिए, उन्होंने अभी लिंक शेयर भी कर दिया है चैट बॉक्स में, तो आप उसके थ्रू ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने एक और इनिशिएटिव ये लिया था कि हम लोग रात को भी मेडिटेशन सेशन रखें फॉर 15 मिनट्स, सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दत्ता भाई सेड, कि हम लोग हेल्दी हैबिट्स बनाना होगा। एंड हेल्दी हैबिट्स में सबसे पहली हैबिट होती है टाइम पे सोना। बिकॉज अगर आप टाइम पे सोएंगे तो टाइम पे उठेंगे, और टाइम पे उठेंगे तो फिर सब चीज़ें आपकी स्ट्रक्चर्ड होंगी, राइट? एंड द मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड प्लान योर डे। तो हम लोग ने
9:45 to 10 रात को भी एक गुड नाइट मेडिटेशन रखा था, बट उसमें अगर ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं आएंगे तो वी हैव टू स्टॉप इट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लाइक सो आप उसे हम फिर से स्टार्ट करेंगे। इफ़ वी गेट गुड पार्टिसिपेशन वी विल कंटिन्यू दैट। ओके, सो दैट यू हैव अ, एंड उसमें हम लोग जो इवनिंग मेडिटेशन होता है, इट्स अबाउट रैपिंग अप द डे, इट्स अबाउट डीक्लटरिंग योर माइंड सो दैट यू गेट ए साउंड क्वालिटी स्लीप, राइट। अगर आपका स्लीप अच्छा होगा तो अगेन इट विल हेल्प यू टू हैव अ बेटर मेडिटेशन एक्सपीरियंस इन द मॉर्निंग। यू विल गेट गुड ड्रीम्स, यू विल गेट अ साउंड स्लीप, right? So just see if you can do that. And I always recommend like being a young person, I understand there are so many things जो हमारी लाइफ में चलती रहती है जिसकी वजह से हमारा टाइम शेड्यूल कभी फिक्स होता ही नहीं है। हम रोज अलग अलग टाइम पे सोते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टास्क हमारे लाइफ में क्या चल रहा है। एंड इट इज़ नॉट ईजी कि हमारा एक फिक्स शेड्यूल हो। तो बट एट द सेम टाइम मैंने ये देखा है अगर हम ये कर सकते हैं तो इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इफ जस्ट टेक अ चैलेंज फॉर 1 वीक। आप लोग एक हफ्ते का चैलेंज लीजिए कि फॉर द नेक्स्ट वीक यू विल अटेंड द मॉर्निंग सेशन डेली। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर एबल टू डू इट फॉर 1 वीक, यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस इन योरसेल्फ। ओके, तो जब भी हम कोई चैलेंज लेते हैं तो वी आर मोर डिटरमाइंड, वी आर मोर एक्साइटेड कि हमें कुछ करना ही है। तो आप इस वीक के लिए, अपकमिंग वीक के लिए चैलेंज लीजिए कि यू विल wake up at 6:30 and join the morning meditation session. Experiment for 1 week. I'm not saying do it. Experiment. If you find it beneficial, you continue. Otherwise, your call. Okay. And just for 1 week, it is a challenge. You do it, as a priority. And from our experience, we can confidently say कि आपको बहुत ज़्यादा difference feel होगा. राइट। सो आई लुक फॉरवर्ड कि आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं और इस क्लब का फ़ायदा लें। इट्स ए वॉलेंट्री इनिशिएटिव, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। एंड देन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ नीड ऑफ द टाइम एज वेल। ओके, सो वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द मॉर्निंग सेशन। अभी हम सेशन को रैप अप करने वाले हैं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अगर कैमरे पे आ जाएं, वी विल हैव अ सेल्फी ऑल टुगेदर। हम सबका सेल्फी लेना चाहेंगे सो दैट वी कैन शेयर इट ऑन अवर मेडिटेशन क्लब ग्रुप सो दैट इट मोटिवेट अदर्स कि आज एक कॉल हुआ था और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था, राइट। एंड देन एवरी संडे वी आर गोना कम अप विथ अ न्यू थीम जिसपे हम डिस्कशन करेंगे। लाइक आज मैजिक ऑफ मेडिटेशन था, वी विल again take up topics like overthinking, procrastination, stress management, right? So ये सारी चीज़ों को भी हम pick up करने वाले हैं। So there are lot many exciting things awaiting. Okay, so रितांशु आप मुझे स्पॉटलाइट से हटा देंगे so that हम लोग एक ग्रुप सेल्फी ले लें। Yeah, I request everyone, please come on the camera for a minute. आप कैमरे पे आ जाइए। Good to see you, Praful, Deepak, Ravi, Abhishek, Anamika, Lata. Yes, still so many people yet to come. Kapil, Manoj, Nancy, Rahul, Dinesh, Khushbu, Shyam, Khushi, Jagdish ji. Yes, happy to see you, Rashi. Yes, please come on the camera. This also will, somewhere empower us ki we were part of the call. So next 5 seconds to come on the camera or we'll go ahead. Yeah, good to see you, Khushbu. So meanwhile, others are coming on the camera. Let me thank Datta Bhai for taking his time out. By the way, Datta Bhai is a professional trainer, and trust me, the charges of his sessions are very high. But again, he does it voluntarily so that people can get benefited. So thank you so much, Datta Bhai, for coming here, giving us such a beautiful experience. मतलब I practice meditation, but maybe आपके जो कमेंट्री थे उस पे मतलब विजुलाइज कर रहा था, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। एंड आई नो दत्ता, जस्ट फॉर द ऑडियंस, दत्ता भाई इज एन एक्सपर्ट ऑन ओवर थिंकिंग। उनकी ओवर थिंकिंग पे वर्कशॉप्स होती हैं 3-3 दिन की, ठीक है। तो मे बी
I know we want to invite you again, some other day to Sure. take session on overthinking. Yes. And Definitely. thanks to Ritanshu for coordinating and taking care of all the things so that the session can be organized. And thanks to all of you, for joining the call and taking benefit of it. And we hope this has helped you. Or I would appreciate आप में से कुछ लोग if you write a LinkedIn post about this session, how it benefited you, along with this the selfie that we will take and share on the group. Okay, so I'm clicking it. Please smile. Can we have a V? Can we have a V victory sign and show? Yeah, superb. Smile. Okay, thank you so much and have a great Sunday ahead. And we look forward for your participation in the morning meditation session. Thank you so much. Thank you, Datta Bhai, once again. Thank you, Thank you Datta so Bhai. much. Thank Thank you. you, ma'am. Okay, all right, yes.